Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 14 of the chapter 4 motion in a plane of class 11. The topics in this part to be discussed by me are projectile motion, especially horizontal projectile motion, its equation of trajectory, time of flight, horizontal range, and velocity of the projectile at any point of its trajectory. First of all, projectile motion. प्रक्षेप्य गति. What is projectile motion and what is projectile? What is a projectile? A projectile is a body thrown either in oblique direction, making some angle to the horizontal, or in the horizontal direction, a body thrown in the horizontal direction above certain height from the ground, so that its motion is influenced by gravity and it follows a curved path, and that curved path is called its trajectory. And the motion of the body after projecting it is influenced by the effect of gravity, so that the body covers a curved path and then returns back to the horizontal or ground after some time. The motion of the body which is thrown is called projectile motion, and the body which is itself thrown is called projectile. And the curved path followed by that projectile, that body is called trajectory. जब किसी वस्तु को, पिंड को, हम क्षैतिज के किसी बिंदु से तिरछे ढंग से, क्षैतिज से कुछ झुकाव कोण पर कुछ प्रारंभिक वेग के साथ ऊपर की ओर फेंकते हैं, या जमीन से, ग्राउंड से कुछ हाइट पर किसी वस्तु को, ऑब्जेक्ट को, जैसे कि कोई बॉल है, गेंद है, तो उसको क्षैतिज दिशा में फेंकते हैं, तो वह पिंड पृथ्वी के, अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट में, गुरुत्व के इफेक्ट में वक्र पथ पर गतिशील हो जाता है. तो उस फेंके गए पिंड को, फेंके गए ऑब्जेक्ट को, जो द ऑब्जेक्ट विच इज थ्रोन, तो उसे प्रक्षेप्य कहा जाता है, प्रोजेक्टाइल कहा जाता है. और जिस वक्र पथ पर, कर्व पाथ पर प्रोजेक्टाइल गमन करता है, गतिशील होता है अर्थ के ग्रेविटी के इफेक्ट में, पृथ्वी के गुरुत्व के प्रभाव में, तो उस वक्र पथ को ट्रैजेक्टरी कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है. और उस वस्तु की गति को, फेंके गए पिंड को हम क्या कहेंगे? जिस पिंड को फेंका गया, थ्रो किया गया, उसको हम प्रक्षेप्य कहेंगे. और गुरुत्व के प्रभाव में, ग्रेविटी के इफेक्ट में वह फेंका गया पिंड, दैट इज प्रोजेक्टाइल, जिस कर्व पाथ को फॉलो करता है उसको ट्रैजेक्टरी कहा जाता है. तो ये हो गया प्रक्षेप्य गति का डिफिनीशन. अब प्रक्षेप्य गति का एग्जाम्पल. तो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर कमिंग टू इट्स एग्जाम्पल, राइट डाउन इट्स डिफिनीशन इन इंग्लिश. If a body is thrown up obliquely from any point, which is called point of projection, from a point of the horizontal or earth of the horizontal with some initial velocity. जब फेंकेंगे, थ्रो करेंगे ऑब्लिकली, तो इनिशियल वेलोसिटी होगा, या उसको सर्टेन हाइट से भी फेंका जा सकता है, ए पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल, और
thrown in the horizontal direction, thrown in the horizontal direction, thrown in the horizontal direction with some initial velocity again above certain height, above certain height from the ground, certain height from the ground, so that its motion is influenced by gravity on a curved path in a plane, that is motion in a plane. It is also an example of projectile motion, is another is an example of motion in a plane along with circular motion, certain height from the ground, so that its motion is influenced, प्रभावित होता है, influenced, so that its motion is influenced by the gravity, influenced by the gravity on a curved path in a plane. तो कर्व पाथ पर जिस पार्टिकल को थ्रो किया गया है, बॉडी को थ्रो किया गया है, तो ग्रेविटी के इफेक्ट में कर्व पाथ पर जो मोशन होगा इन ए प्लेन, तो उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे. इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ 2 डायमेंशनल मोशन influenced by the action of gravity on a curved path, and it follows the gravity and it follows the curved path in a plane, and it follows a curved path in a plane, and then returns back to ground, and then strikes the ground, and then उसके बाद ग्राउंड से टकराएगा, strikes the ground. The motion of the body thrown is called projectile motion. Its motion, its माने बॉडी का जो मोशन है, its motion is called projectile motion, is called projectile motion. And the body which is itself thrown, the body itself thrown is called projectile. जिस बॉडी को फेंका गया उसको प्रोजेक्टाइल कहेंगे. And the body which is thrown, body thrown, itself thrown, the body which is itself thrown is called, the body thrown is called projectile. And the curved path followed by the projectile is called trajectory. The curved path followed by the projectile is called trajectory. Followed by the projectile is called trajectory. It's called its trajectory. तो ये डिफिनेशन हो गया. एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूँ जिससे कि आप लोगों को नोट करने में सुविधा होगी. इफ ए बॉडी इज थ्रोन अप ऑब्लिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल और ग्राउंड, और थ्रोन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, या तो तिरछा हम फेंकें किसी ग्राउंड के किसी पॉइंट से, हॉरिजॉन्टल के किसी पॉइंट से तिरछे ढंग से, क्षैतिज से कुछ झुकाव कोण पर, या ग्राउंड से कुछ हाइट पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंकें. तो इफ ए बॉडी इज थ्रोन अप ऑब्लिकली फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ द हॉरिजॉन्टल or thrown in the horizontal direction above certain height from the ground, so that its motion is influenced by the gravity and it follows a curved path in a plane and then strikes the ground, its motion is called projectile motion and the body thrown is called projectile. The curved path that followed by the projectile is called trajectory, its trajectory.
पहले भी मैंने बतलाया, एक बार से फिर हिंदी में भी फिर से रिमाइंड करता हूँ, इसको फिर से रिपीट करता हूँ। यदि किसी वस्तु को, जैसे कि कोई गेंद है, कोई स्टोन है, स्टोन का पीस है, तो उसको जमीन के किसी बिंदु से, ग्राउंड या क्षैतिज तल के किसी बिंदु से तिरछा ढंग से फेंका जाए, या जमीन से कुछ हाइट पर, ऊंचाई पर से, जैसे मकान के छत पर से, रूफ से किसी गेंद को, किसी बॉल को क्षैतिज दिशा में फेंक दिए, या तिरछे ढंग से ऊपर की ओर भी फेंक सकते हैं। दो टाइप का प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। आज हम लोग हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो यदि किसी वस्तु को क्षैतिज तल से, जमीन से या क्षैतिज तल के किसी बिंदु से तिरछे ढंग से ऊपर की ओर फेंका जाए, या जमीन से कुछ ऊंचाई पर किसी वस्तु को क्षैतिज दिशा में फेंका जाए, तो वह पिंड गुरुत्व के प्रभाव में, पृथ्वी के गुरुत्व बल के प्रभाव में वक्र पथ पर गतिशील हो जाता है। वक्र पथ पर गतिशील होकर समतल में गति करता है, द्विविमीय गति करता है, तथा जमीन के किसी बिंदु पर, कुछ समय बाद जमीन के किसी बिंदु पर, ग्राउंड के किसी पॉइंट पर जाकर के वापस लौट आता है, गिर जाता है। तो गुरुत्व के प्रभाव में वस्तु द्वारा, उस वस्तु की जो गति होगी वक्र पथ पर, समतल में गति, उसको हम क्या कहेंगे? उसे हम प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति कहेंगे। और जिस पिंड को खुद फेंका गया, जैसे मान लिया बॉल फेंका गया, तो बॉल प्रोजेक्टाइल है, तो फेंके गए पिंड को प्रक्षेप्य कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। हिंदी में उसको प्रोजेक्टाइल, हिंदी में उसको, अंग्रेजी में प्रोजेक्टाइल, हिंदी में प्रक्षेप्य कहा जाएगा। और जिस कर्व पाथ पर प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है, जिस कर्व पाथ को, जिस वक्र पथ पर प्रक्षेप्य प्रोजेक्टाइल गतिशील होता है, उसको ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ। ट्रेजेक्ट्री को हिंदी में प्रक्षेप्य पथ कहा जाता है। ये डिफिनीशन हो गया प्रोजेक्टाइल का, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। अब इसका एग्जाम्पल हम देखें प्रोजेक्टाइल मोशन का। बहुत सारा एग्जाम्पल है, जैसे मोशन ऑफ ए बुलेट फायर्ड फ्रॉम ए गन, मोशन ऑफ ए बुलेट, बंदूक से छोड़ी गई गोली की गति, मोशन ऑफ ए बुलेट। मोशन ऑफ ए बम ड्रॉप फ्रॉम द एरोप्लेन, फ्रॉम एन एरोप्लेन, मोशन ऑफ ए बम ड्रॉप्ड फ्रॉम एन एरोप्लेन, dropped from an aeroplane. Motion of a bomb dropped from an aeroplane. Motion of a javelin, a javelin throw by, javelin भाला फेंका जाता है, javelin thrown by an athlete. It is also an example of projectile motion. A javelin thrown by an athlete, motion of a golf ball when it is strike hitted, गोल्फ का बॉल जो होता है, उसको जब हिट किया जाता है गोल्फ बॉल को, तो अभी जो है कर्व पाथ को फॉलो करता है और फिर जाकर ग्राउंड पर कुछ दूर पर जाकर गिरता है। तो मोशन ऑफ ए गोल्फ बॉल, मोशन ऑफ ए गोल्फ बॉल, इस भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल है। इसके अलावा मोशन ऑफ एन एरो थ्रोन फ्रॉम द बो, किसी धनुष से जो तीर छोड़ा जाता है, वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन का एग्जाम्पल होगा। या क्रिकेट के बैट से जिस गेंद को हिट किया जाता है, तो वो भी कर्व पाथ पर काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है, कर्व पाथ को फॉलो करता है, ऊंचाई की ओर जाने वाला। तो मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम द बैट, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम ए बैट, हिट फ्रॉम ए क्रिकेट बैट, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल हिट फ्रॉम या हिट बाई ए क्रिकेट बैट, मोशन ऑफ ए क्रिकेट बॉल hit by a cricket ball, cricket bat, etc. Motion of a ball thrown horizontally along the
फ्रॉम द रूफ ऑफ ए हाउस etc। और ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का भी एग्जाम्पल होगा जिसका स्टडी अब इसके बाद हम करेंगे। द मोशन ऑफ ए क्रिकेट क्रिकेट बॉल हिट बाई ए बैट, क्रिकेट बैट etc आर द एग्जाम्पल्स ऑफ projectile motion. Now there are two types of projectile motion, horizontal projectile motion and oblique projectile motion. But in this part I am going to discuss horizontal projectile motion. In the next part, that is in part 15, I will discuss oblique projectile motion and its related topics. नाउ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन, क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। जैसा कि मैंने बताया कि प्रक्षेप्य गति और प्रोजेक्टाइल मोशन दो टाइप का होता है। नंबर 1 हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन एंड नंबर 2 ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसको तिरछी प्रक्षेप्य गति हिंदी में कहा जाता है, और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन को क्षैतिज प्रक्षेप्य गति। लेकिन इस पार्ट में हम केवल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन तक ही रिस्ट्रिक्टेड रहेंगे, सीमित रहेंगे। उसी से रिलेटेड हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड टॉपिक्स को ही इस पार्ट में डिस्कस करना है पार्ट 14 में, और जो पार्ट 15 होगा उसमें ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन को मैं डिस्कस करूँगा। तो सबसे पहले हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन है क्या चीज़। जैसा कि प्रोजेक्टाइल मोशन के डिफिनीशन में मैंने बताया था कि किसी बॉडी को हॉरिजॉन्टल से या ग्राउंड से हम ऑब्लिकली ऊपर की ओर फेंक सकते हैं तिरछे ढंग से, या ज़मीन से ग्राउंड से कुछ हाइट ग्राउंड से कुछ हाइट पर, जैसे कि किसी मकान का छत है, रूफ ऑफ ए हाउस, तो वहाँ से कोई आदमी क्षैतिज दिशा में कोई बॉल फेंक सकता है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो जब किसी ऑब्जेक्ट को, जब किसी बॉडी को हम ग्राउंड से कुछ ऊंचाई पर क्षैतिज दिशा में फेंका जाता है, और क्षैतिज दिशा में फेंकने के बाद उसका मोशन क्षैतिज दिशा में तो नहीं रह पाएगा क्योंकि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा। फेंकेंगे लेकिन क्षैतिज दिशा में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, लेकिन उसका मोशन क्षैतिज दिशा में थोड़े ही रह पाएगा, वह तो कर्व पाथ पर मोशन होगा, उसका मोशन डाउनवर्ड हो जाएगा उसके बाद कर्व पाथ पर, और एक्स वाई 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन ऑन ए कर्व पाथ। एंड कुछ टाइम के बाद तथा कुछ टाइम के बाद वह जो ऑब्जेक्ट है वह ग्राउंड पर आकर गिर जाएगा। तो सपोज करते हैं किसी बॉडी को ग्राउंड से एच हाइट से के पॉइंट ओ से फेंका गया, वो इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। एट t इक्वल टू 0 द पोजिशन कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज x0 y0। इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया तो इनिशियल स्पीड जो है vox, दैट इज एट पॉइंट ओ पर जो वेलोसिटी है उसका x कंपोनेंट vox है और नीचे voy है। तो चूंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो किया जा रहा है इसलिए vox इक्वल टू u मान लेते हैं, सपोज करते हैं, इक्वल टू ux, केवल x कंपोनेंट में वेलोसिटी होगा, इनिशियल वेलोसिटी का कंपोनेंट, y कंपोनेंट इसका, चूंकि मोशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बॉडी को थ्रो किया जा रहा है इसलिए इसका इनिशियल वेलोसिटी जो है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से बॉडी को, जो कि ज़मीन से ग्राउंड से कितने हाइट पर है, ग्राउंड के ए पॉइंट से h हाइट पर है, और उस बॉडी को, ऑब्जेक्ट को, प्रोजेक्टाइल को फेंका जा रहा है उस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में x एक्सिस के अलॉन्ग, और जो वेलोसिटी होगा उसका मान लो सपोज करते हैं u। तो vox का मतलब है वेलोसिटी एट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन o, जहाँ पर की पोजीशन कोऑर्डिनेट कितना है पार्टिकल का x0 y0, और दोनों ही चूँकि o जो है ऑरिजिन है तो इसलिए x0 इक्वल टू 0, टी टाइम पर जो t इक्वल टू 0 इनिशियली जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होगा ऑरिजिन का वह हो जाएगा x0 y0। तो ऑरिजिन का जो पोजीशन कोऑर्डिनेट होता है 0 0 होता है, देयरफॉर x कोऑर्डिनेट 0 होगा, x0 इक्वल टू 0 एंड y0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0। एंड vox जो इनिशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी का डायरेक्शन वह जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, तो vox इक्वल टू ux, मतलब x कंपोनेंट x डायरेक्शन में ही केवल वेलोसिटी है, और ux इक्वल टू u से, तो u वेलोसिटी से थ्रो किया जाता है। लेकिन थ्रो किए जाने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया, लेकिन यह इस पर जो है फेंके गए ऑब्जेक्ट पर ग्रेविटी का इफेक्ट होगा, तो इसलिए वह अब हमेशा उसका मोशन क्षैतिज दिशा में ही नहीं रह पाएगा बल्कि कर्व पाथ पर मोशन हो जाएगा, 2 डायमेंशनल मोशन हो जाएगा, इन ए प्लेन, समतल में गति हो जाएगी, और वह इस पाथ पर जो है ये ट्रेजेक्ट्री फॉलो करेगा OPB, बी पर आकर के वह ग्राउंड पर आकर हिट करेगा। तो द पाथ, कर्व पाथ फॉलोड बाय द प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड ट्रेजेक्ट्री।
प्रोजेक्टाइल के द्वारा कर्व पाथ पर जो कर्व पाथ जो फॉलो किया जाएगा, जो कर्व पाथ फॉलो किया जाएगा उस पर फेंके गए प्रोजेक्टाइल द्वारा, फेंके गए बॉडी द्वारा, उसको ट्रेजेक्ट्री कहेंगे। तो ट्रेजेक्ट्री हो गया OPB। और मान लिया कि टी टाइम के बाद वह जो प्रोजेक्टाइल है वह चलाया कहाँ पर, किस पॉइंट पर, P पॉइंट पर, कर्व पॉइंट ट्रेजेक्ट्री के कर्व पाथ या ट्रेजेक्ट्री के पॉइंट P पर चलाया प्रोजेक्टाइल, जिसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया था। और P पॉइंट पर उसका जो कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, वह हो गया XY। यहाँ कोऑर्डिनेट लिखा जा सकता है x, y, x, y, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट। जबकि वो पॉइंट जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन था, इसको हमने ऑरिजिन मान लिया है, सपोज किया है, तो इसका कोऑर्डिनेट x0 y0 जो कि 0 0 हो जाएगा। ऑरिजिन पर x कोऑर्डिनेट भी 0, y कोऑर्डिनेट 0, लेकिन हमने x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0। लेकिन P पॉइंट पर कोऑर्डिनेट 0 0 नहीं होगा, वहाँ तो टी टाइम के बाद कुछ वर्टिकल डिस्टेंस भी कवर किया है बॉडी। इसके P पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग डिस्टेंस जो है y है, वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस, ये जो कवर किया है प्रोजेक्टाइल। और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x हो गया। अब टी टाइम में कितना डिस्टेंस करेगा, x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, दोनों कैलकुलेट करेंगे और दोनों को कंबाइन कर देंगे वैल्यू को। एक में जो टाइम आएगा, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू कवर डिस्टेंस x, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेज टू पॉइंट P ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री। कर्व पाथ के पॉइंट P पर पहुंचेगा तो क्षैतिज दिशा में क्षैतिज दूरी कितना कवर करेगा, तो इसका P पॉइंट का पोजीशन कोऑर्डिनेट हमने सपोज किया है XY, इसलिए x डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम के बाद। और वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस कवर करेगा कितना, टी टाइम पर ही जो वर्टिकल डिस्टेंस होगा डाउनवर्ड, वह y होगा। तो हम टी टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो मालूम कर लेंगे, और उस टी के वैल्यू को फिर y के लिए इक्वेशन करेंगे, डाउनवर्ड मोशन के लिए, जो हम इक्वेशन उसमें टाइम थी, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी का यूज करेंगे। y इक्वल टू ut प्लस हाफ GT², माइनस भी हो सकता है अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन मान लें तो डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा वर्क करता है नीचे की ओर, इससे वो नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया जाए तो अपवर्ड डायरेक्शन में जो भी चीज़ होगा, जो भी डिस्टेंस, वह नेगेटिव होगा, लेकिन डाउनवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव होगा। क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो उसको पॉजिटिव, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी पॉजिटिव होगा। तो यहाँ हम इस केस में डाउनवर्ड डायरेक्शन को वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन सपोज किया जाता है इस केस में यहाँ पर। तो अब P पॉइंट पर जो है x डिस्टेंस, टी टाइम में डिस्टेंस x y कोऑर्डिनेट है इसका P पॉइंट का, तो टी टाइम में डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इज x, वाइल वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अलोंग y एक्सिस इज स्मॉल y। और P पॉइंट पर वेलोसिटी v है, टेंजेंशियल डायरेक्शन में कर्व पर P पॉइंट पर वेलोसिटी v है। अब इसका भी दो कंपोनेंट हो जाएगा, क्योंकि XY प्लेन में, माने यहाँ मोशन जो है XY प्लेन में शो किया, 2 डायमेंशनल मोशन है, XY प्लेन में मोशन परफॉर्म हो रहा है बॉडी का अगर, तो वेलोसिटी का भी इसके में 2 कंपोनेंट हो जाएगा, एक x कंपोनेंट Vx, और जिसके x डायरेक्शन के साथ ये वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है थीटा एंगल फॉर्म करता है। इस थीटा का वैल्यू हम वेलोसिटी का डायरेक्शन का कितना इंक्लिनेशन होगा x एक्सिस से वो निकाल सकते हैं, tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx। ये x कंपोनेंट हो गया वेलोसिटी का, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में y कंपोनेंट। इस ढंग से एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिए, तो ये Vy है, ये साइड वर्टिकल साइड, तो ये भी वर्टिकल कंपोनेंट Vy हो जाएगा। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज Vy/Vx। तो P पॉइंट पर पहले वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, और उसके बाद जो है डायरेक्शन निकल जाएगा tan थीटा इक्वल टू Vy/Vx से। और इस टाइप का प्रॉब्लम को मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स के सॉल्यूशन में एक प्रॉब्लम को सॉल्व भी किया था, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड था, मैं कर चुका हूँ चैप्टर 3 में, रेस्ट एंड मोशन का, जो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन पर ही बेस्ड था। और वहाँ अंतर था कि केवल ग्राउंड को स्ट्राइक करने पर, जब स्ट्राइक किया तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना होगा और डायरेक्शन कितना होगा इस पॉइंट पर, बी पॉइंट पर। लेकिन यहाँ कोई पॉइंट कर्व पाथ पर ही ले लिए हैं, टी टाइम के बाद यहाँ पोजीशन है प्रोजेक्टाइल का, तो वर्टिकल डिस्टेंस तो टी टाइम के कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट यहाँ वर्टिकल डिस्टेंस y होगा और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x होगा। तो सपोज करते हैं लेट एट एनी पॉइंट, अब इसका इक्वेशन ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, मतलब इसका कर्व पाथ को, प्रोजेक्टाइल मोशन के कर्व पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है। अब इसके लिए इक्वेशन, ये पाराबोला का शेप है, इसका पाराबोलिक आएगा भी, उसका इक्वेशन ऑब्टेन होगा, वही इक्वेशन ऑब्टेन करते हैं। ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल में भी इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री पाराबोला आएगा, उसके लिए अलग से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री में ऑब्टेन करूँगा। तो यहाँ मान लेते हैं लेट एट टाइम t द बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम पॉइंट O विथ इनिशियल वेलोसिटी v। पॉइंट O से लेट बॉडी को थ्रो किए हैं, सुबह ऊपर में जो है उसको सपोज किया हुआ है। तो एट एनी इंस्टेंट आफ्टर टाइम t, लिखिए लेट एट एनी इंस्टेंट, दैट इज आफ्टर टाइम t, लेट एट एनी इंस्टेंट, किसी टाइम t पर, आफ्टर टाइम t,
आफ्टर टाइम टी या एट टाइम टी, इंस्टेंट मीन्स टाइम, एट टाइम टी वो पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है जहाँ पोजीशन कोऑर्डिनेट x0 y0, और वो को ओरिजिन अगर मान लिया जाए तो x0 y0 दोनों जीरो हो जाएगा. That at any instant the projectile, the body which is thrown, which is the horizontal projectile body, is at point P, at point P of its trajectory. Of its trajectory means curve path of its projectile का of its trajectory, जो path covered by the body, curve path covered by the body is called trajectory of its trajectory. अब हमने मोशन इन ए प्लेन में दो एक्स कोऑर्डिनेट का मोशन, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन और वाई एक्सिस के लॉन्ग अलग अलग जो है मोशन, टू डायमेंशनल मोशन क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट के लॉन्ग मोशन और वाई एक्सिस के लॉन्ग इंडिपेंडेंट मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन का कम्बिनेशन है. तो हमने एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल विच इज एक्स एट टाइम टी, वो हम कैलकुलेट करना है. तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन, motion in a plane along x axis, using the equations of motion in a plane, that is xy plane. इसको मैंने ऑब्टेन किया था, इसके पहले जो पार्ट्स थे उसमें दो पार्ट्स में था वो. यूजिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन इन ए प्लेन, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन ए प्लेन, मोशन इन ए प्लेन. अब एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन के लिए along x axis, मोशन along x axis, फॉर मोशन along x axis, फॉर मोशन along x axis वी हैव along x axis के लिए हमने फिर y एक्सिस के लॉन्ग भी अप्लाई करेंगे. तो x एक्सिस के लॉन्ग x टी टाइम में डिस्टेंस कवर किया, x डिस्टेंस कवर बाय द बॉडी प्रोजेक्टाइल इज x, एंड x0 इक्वेशन जो था मेरा x0 ऑब्टेन प्लस इनिशियल वेलोसिटी vox ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर vox इंटू टी प्लस हाफ एक्स कंपोनेंट है एक्सेलेरेशन का. लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन जो होता है दो इंडिपेंडेंट मोशन है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग का कम्बिनेशन है. एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, जो वेलोसिटी कांस्टेंट यू है, कहीं भी हॉरिजॉन्टल मोशन होगा प्रोजेक्टाइल मोशन तो वेलोसिटी उसका स्पीड कांस्टेंट होगा, यू होगा. और दूसरा वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन जो कि वर्टिकल मोशन है, जो कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होगा, और वह कांस्टेंट एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल जी होगा. तो प्रोजेक्टाइल मोशन जो है दो इंडिपेंडेंट मोशंस, एक एलोंग एक्सिस एलोंग द एक्स एक्सिस एंड सेकेंड वन इज एलोंग द वाई एक्सिस. एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मोशन जो कि कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होगा, यू के साथ होगा, और दूसरा मोशन जो है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, वाई एक्सिस के लॉन्ग होगा, जो कि कांस्टेंट एक्सेलेरेशन के साथ होगा, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्व के प्रभाव में होगा. और वह कांस्टेंट एक्सेलेरेशन क्या होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी होगा, स्मॉल जी. तो नाउ x इक्वल टू x0. तो सो टाइम टेकन, डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल इन टाइम t आफ्टर टाइम t इज, एट टाइम t इज कितना होगा, x इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t इज. नाउ x इक्वल टू x0 इक्वल टू 0, हमने ऑरिजिन मान लिया है उसको, तो ऑरिजिन पर x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट 0 होता है. तो x0 इक्वल टू 0 प्लस vox, x डायरेक्शन में वेलोसिटी है, यहाँ पर voy जो है वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाएगा डाउनवर्ड, जो कि फेंका गया है, थ्रो किया गया है ऑब्जेक्ट को x डायरेक्शन में. तो vox इक्वल टू ux, और उस स्पीड को u मान लिया. तो यहाँ पर vox के जगह u इंटू टी टाइम टेकन बाई द प्रोजेक्टाइल टू रीच पॉइंट p फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन o ऑन द ट्रेजेक्ट्री ऑन द कर्व पाथ, u इंटू टी प्लस हाफ. और चूंकि हमने बताया कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मोशन जो है प्रोजेक्टाइल मोशन का, वह जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ होता है. दैट इज कॉन्स्ट विथ इट इज द हॉरिजॉन्टल मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज द कांस्टेंट मोशन, इज द मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी. सो एक्सेलेरेशन एलोंग एक्स एक्सिस इज 0, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, तो एक्सेलेरेशन का कोई क्वेश्चन ही नहीं है. एक्सेलेरेशन तब होता है जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी में चेंज होता है. इसलिए vox भी 0 हो गया, x कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का, vox इक्वल टू u हो गया, और टाइम t हो गया, x 0 हो गया, एक्सेलेरेशन 0 हो गया. तो हाफ इंटू x इक्वल टू 0. प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x जो है 0 होगा, प्रोजेक्टाइल के हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए x इक्वल टू 0.
एक्सेलेरेशन 0 हो गया इंटू टी स्क्वायर। यहाँ प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल मोशन कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ होता है, जो कांस्टेंट वेलोसिटी u है, तो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलेरेशन, सो x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमको आ गया x इक्वल टू यू इंटू टी, डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल आफ्टर टाइम t इज x इक्वल टू यू इंटू टी, यू मल्टीप्लाइड बाई टी, और इससे हमको t मिल जाएगा, इससे t इक्वल टू एक्स अपॉन यू, t इक्वल टू x इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाई द प्रोजेक्टाइल when it is thrown from point O, point of projection O, and it reaches to point P, तो वह जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम पर एक्स एक्सिस के लॉन्ग, वह होगा एक्स स्मॉल एक्स, जो कि केवल बचा, केवल क्या ऑब्टेन हुआ, यू इंटू टी, देयरफॉर टी इक्वल टू एक्स अपॉन यू। और उसके बाद वाई एक्सिस के लॉन्ग मोशन जो होगा, मोशन इन प्लेन का, वाई इक्वल टू वाई जीरो प्लस वी ओ वाई इंटू टी प्लस हाफ ए वाई एस टी स्क्वायर। लेकिन वर्टिकल जो डाउनवर्ड मोशन है वह कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के साथ हो रहा है, वह एक्सेलरेशन क्या है, ए वाई इक्वल टू जी विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण होगा। Now time taken by the projectile to cover the horizontal distance x when it reaches to point P is t इक्वल टू x इक्वल टू u इंटू टी हमारा हमें ऑब्टेन हुआ था, horizontal distance covered by the projectile when it reaches from point O to point B। जब प्रोजेक्टाइल को O पॉइंट से ऑब्जेक्ट को फेंका गया था हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसके बाद वह टी टाइम के बाद उसका पोजीशन हो गया कर्व पाथ के पी पॉइंट पर। तो पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई था, मतलब टी टाइम में कवर किया गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हो गया, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है एक्स, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स हो गया, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वर्टिकल डिस्टेंस हो गया टी टाइम में बॉडी के द्वारा कवर किया गया वह स्मॉल वाई था। तो स्मॉल एक्स का वैल्यू हो गया यू इंटू टी, देयरफॉर टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल टू रीच एट पॉइंट पी, reach at point P of the trajectory of the curve path, therefore t is equal to x upon u, x upon u. This is equation 1. Now using the equation of motion in a plane along the y axis, vertical y axis, downward motion के लिए, now the motion of the projectile along the y axis, now for the vertical downward motion along the y axis, for the downward motion of the projectile, horizontal projectile of the projectile, the equation is equation of motion in a plane जो हमने obtain किया था, y equal to t time distance covered by the projectile, डिस्टेंस कवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड, ये वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कॉरस्पॉन्डिंग टू पॉइंट पी व्हेन द प्रोजेक्टाइल रीचेज टू पॉइंट पी, जब प्रोजेक्टाइल ओ पॉइंट से एच हाइट पर, ग्राउंड से एच हाइट पर के ओ पॉइंट से प्रोजेक्ट किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो यू स्पीड से, तो उसके बाद वह उसका जो मोशन इन्फ्लुएंस हो जाएगा, उसका जो गति है प्रक्षेप्य की, वह गुरुत्व के द्वारा, ग्रेविटी के द्वारा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगी, और वह प्रक्षेप्य किसी टाइम टी टाइम के बाद वह उसका पोजीशन है पी पॉइंट पर, जहाँ कोऑर्डिनेट है उसका एक्स वाई, मत मीन्स टी टाइम के बाद हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एक्स एक्सिस के लॉन्ग डिस्टेंस स्मॉल एक्स कवर करेगा, और वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस वो कवर करेगा पी पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग, ये डिस्टेंस वाई और स्मॉल वाई हो गया। तो ये फॉर द वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन, फॉर द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल इन एक्स वाई प्लेन इज वाई इक्वल टू, द इक्वेशन ऑफ मोशन इज वाई इक्वल टू y0 इनिशियल पॉइंट, y0 इक्वल टू 0 है इनिशियल, एट t इक्वल टू 0 द पोजीशन कोऑर्डिनेट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल एट टाइम t इक्वल टू 0 विच इज y0। तो यहाँ पर तो जब ऑरिजिन पर ही है t इक्वल टू 0 पर, तो y0 भी 0 होगा, वो को ऑरिजिन मान लिया गया है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन वो को ऑरिजिन माना गया है, तो x0 इक्वल टू 0, y0 इक्वल टू 0, ये 0 ही हो जाएगा। और स्पीड हो गया वाई एक्सिस के लॉन्ग वी ओ वाई, और वी ओ वाई 0 है, चूँकि प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसका डाउनवर्ड मोशन का इनिशियल वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट नहीं होगा, 0 होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में टोटली उसको थ्रो किया गया है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन का वेलोसिटी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, तो वी ओ वाई इक्वल टू 0, इनिशियल वेलोसिटी का जो वाई वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट होगा, वाई कंपोनेंट वह 0 होगा।
प्लस, लेकिन मोशन जो है नीचे की ओर किससे इन्फ्लुएंस है, ग्रेविटी से, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ। प्रोजेक्टाइल मोशन का जो डाउनवर्ड मोशन है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का, वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, और वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन हम जी मानेंगे। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन हम मान चुके हैं शुरू में, इसलिए जी पॉजिटिव होगा। अगर अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाए तो उस सिचुएशन में जी जो होगा हमेशा जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड काम करता है, तो उस सिचुएशन में नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही, वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव डायरेक्शन मान लिया गया है। अब यहाँ पर y0 भी 0 होगा, क्योंकि यहाँ इनिशियल पॉइंट O पर पोजीशन कोऑर्डिनेट x0 और y0 ऑरिजिन सपोज किया गया है वो, तो 0 प्लस VOY भी 0 प्लस हाफ AY इजकल टू हो गया प्लस जी इंटू टी स्क्वायर। AY जो, चूँकि इसका जो डाउनवर्ड मोशन हो रहा है प्रोजेक्टाइल का, वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ है, और वह कांस्टेंट एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। AY इजकल टू जी हमने पॉजिटिव लिया है, इसलिए यहाँ कि डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव मान लिया है इसलिए, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डाउनवर्ड के लॉन्ग काम ही करता है। देयरफॉर और y इजकल टू, वी विल लेफ्ट विथ y इजकल टू हाफ जी इंटू टी स्क्वायर। नाउ टी इज एक्स अपॉन यू, अब यहाँ पर रखते हैं हम वैल्यू 1/2 जी यूजिंग इक्वेशन 1, टी जी ये 1/2 जी टी इजकल टू एक्स अपॉन यू होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 जी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर। अब ये आपका इक्वेशन हो गया। ये रिलेशन बता रहा है वाई कोऑर्डिनेट टी टाइम पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O से जब प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में OX डायरेक्शन के लॉन्ग थ्रो किया गया है, तो टी टाइम के बाद प्रोजेक्टाइल का पोजीशन, ऑब्जेक्ट का पोजीशन कर्व जो ट्रेजेक्ट्री है कर्व पाथ OPB इसके P पॉइंट पर है, तो वहाँ जो वर्टिकल डाउनवर्ड डिस्टेंस है टी टाइम में y, और जो x डिस्टेंस है टी टाइम में डिस्टेंस x कवर किया, तो उसके बीच में रिलेशन हो गया y और x के बीच में। तो y इजकल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाई जी अपॉन यू स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, दैट इज जी अपॉन 2u स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। और ये इक्वेशन जो है y और x के बीच में रिलेशन है टी टाइम पर, y कोऑर्डिनेट क्या होगा प्रोजेक्टाइल का और x कोऑर्डिनेट क्या होगा उसके बीच में रिलेशन है, लेकिन ये रिलेशन यहाँ x क्वाड्रेटिक है, x का पावर 2 है, इसलिए पाराबोला का इक्वेशन है। दिस रिप्रेजेंट्स द इक्वेशन ऑफ ए पाराबोला। ये इक्वेशन ये सेकेंड इक्वेशन था, ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। एंड दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द equation of trajectory. This is the equation of this equation is similar to the equation of a parabola. So the path of the which is the equation of trajectory. So trajectory is parabolic. Trajectory is parabolic. ये जो कर्व पाथ है OPB, ये कर्व पाथ क्या होगा, parabolic. And this represents the equation of a parabola. And this is also equation of trajectory. That is equation of the path of the projectile, curve path of the projectile. This represents this represents the equation of trajectory of the horizontal projectile. The equation of trajectory of the horizontal projectile, which is an equation of parabola. So the trajectory is parabolic, and trajectory of the projectile, horizontal projectile, and it is a parabola. It represents a parabola. It is the equation of parabola, similar to equation of parabola, which is the equation of a parabola. उसी के सिमिलर है equation of a parabola. So path of the projectile, that is trajectory OPB, the path on which the projectile, the path covered by the projectile in the horizontal projectile motion, is curve path is OPB, which is parabolic. ये parabola का इक्वेशन है, तो parabolic हो जाएगा curve path. It is the equation of parabola. So the path of the projectile is, trajectory is parabolic. So the trajectory of the projectile, trajectory. So its trajectory of the projectile, horizontal projectile, is parabolic of the
हॉरिजेंटल प्रोजेक्टाइल इज पैराबोलिक। पैराबोलिक। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। ये टाइम ऑफ फ्लाइट अब कैलकुलेट हम करेंगे और रेंज करेंगे और वेलोसिटी एट पॉइंट पी, तीन चीज़ ये कैलकुलेट हम करेंगे। Now time of flight capital T of the horizontal projectile. It is the time taken by the projectile to complete its trajectory, that is curve path OPB is called time of flight, is called its time of flight. That means the time taken by the projectile to reach the point B of the ground from the point of projection O is called टाइम ऑफ फ्लाइट। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यहाँ प्रक्षेपण बिंदु है जो कि ज़मीन से ग्राउंड से h हाइट पर इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है। तो ओ पॉइंट से कर्व पाथ को फॉलो करते हुए ट्रेजेक्ट्री जो पैराबोलिक है, अभी हमने निकाला पैराबोला का इक्वेशन ऑब्टेन किया, तो ये कर्व पाथ OPB जो है ट्रेजेक्ट्री है, प्रक्षेप्य पथ है। उसको प्रक्षेप कोई प्रोजेक्टाइल जिस कर्व पाथ को फॉलो करता है उसको हम ट्रेजेक्ट्री कहते हैं और हिंदी में प्रक्षेप्य पथ। तो वो से थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ओ से ग्राउंड के बी पॉइंट तक ट्रेजेक्ट्री OPB कर्व पाथ OPB को फॉलो करते हुए उस पर कर्व पाथ पर गुजरते हुए प्रक्षेप को बी तक, प्रक्षेपण बिंदु ओ से बी तक, जमीन के बिंदु बी तक, ग्राउंड के बी तक, बिंदु पॉइंट बी तक पहुंचने में जितना समय लगेगा तो उस समय को हम टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं, जिसका सिंबल कैपिटल T है। Now again using the equation of motion in a plane, equation of motion of a body in a plane, that is for the vertical downward motion, तो y इक्वल टू अगेन यूजिंग, तो यहाँ पर टाइम जो होगा t वह कैपिटल T हो जाएगा केवल। अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी y इक्वल टू, अब y0 तो 0 हो गया, शुरू में छोड़ देते हैं अब उसमें, अब केवल y0 या y0 रखिए, 0 कर देंगे, और VOY इनिशियल स्पीड का वर्टिकल डाउनवर्ड कंपोनेंट जो कि 0 होगा, चूँकि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में थ्रो किया गया है। VOY इंटू टी प्लस हाफ डाउनवर्ड मोशन में एक्सेलेरेशन AY इंटू T², अभी हमने यूज किया था इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑब्टेन करने के लिए। अब यहाँ पर y0 0 है, चूँकि O को ऑरिजिन मान लिया गया है पॉइंट ऑफ ये प्रोजेक्शन को, तो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो जाएगा। अब VOY भी 0 है, चूँकि प्रोजेक्टाइल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया है, तो वर्टिकल कंपोनेंट इनिशियल वेलोसिटी का 0, T प्लस हाफ AY इक्वल टू G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू T², दैट इज, और y इक्वल टू हाफ GT², और T² और T के जगह यहाँ पर कैपिटल T के जगह हम कैपिटल T कर देंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट है टोटल टाइम। T तो कोई टाइम है जिसमें प्रोजेक्टाइल पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से कर्व के पॉइंट P पर आ गया, ट्रेजेक्ट्री के कर्व पाथ के पॉइंट P पर आ गया, तो वह टाइम स्मॉल टाइम है। लेकिन B तक पहुंचेगा तो टाइम T के जगह कैपिटल T रिप्लेस करना होगा। तो ये हो गया हाफ GT², केवल बचा हाफ GT² ही, T के जगह T रिप्लेस कर दिए, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। T इक्वल टू कैपिटल T, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। देयरफॉर टाइम ऑफ ये फ्लाइट मालूम हो गया, T² इक्वल टू 2y अपॉन जी, 2y अपॉन जी। अब y कितना है, h है, ग्राउंड पर पहुंच गया ना, तो y भी, y की जगह h कर दीजिए यहाँ पर सीधे, y h हो गया, जितने हाइट से बॉडी को थ्रो किया गया था h हो गया, तो y की जगह h हो गया यहाँ, T इक्वल टू T एंड y इक्वल टू h, हाइट हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस जो होगा, टोटल वर्टिकल डिस्टेंस y की एक्सिस के लॉन्ग h हो गया, जो कि ग्राउंड पर आ गया है, उसे प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है, थ्रो किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और कर्व पाथ को ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर ग्राउंड B पर आ गया है, तो उसे B पर आया तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकल डिस्टेंस h हो जाएगा, जितने हाइट पर से बॉडी को फेंका गया था, थ्रो किया गया था। तो T² इतना है, देयरफॉर T इक्वल टू, और T इक्वल टू √2h अपॉन जी। यही फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, ये फार्मूला हो गया टाइम ऑफ फ्लाइट का, T इक्वल टू 2h अपॉन जी। इसका इक्वेशन 1 कर देते हैं, इसके लिए रोमन 1।
द टाइम ऑफ फ्लाइट, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट √2gh/g, जो कि वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन से u पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये हाइट पर डिपेंड कर रहा है और g पर कर रहा है। तो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट, t इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल विच इज √2h/g, h हाइट है, g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। कहीं भी ये v0 माने u पर डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। ये उड़ान काल है, हिंदी में इसको उड़ान काल कहेंगे, प्रक्षेप्य का क्षैतिज प्रक्षेप गति का उड़ान काल टाइम ऑफ फ्लाइट है, जो कि प्रारंभिक वेग u पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल हाइट पर डिपेंड कर रहा है, ऊंचाई पर और g पर। तो ये उड़ान काल का व्यंजक सूत्र है, व्यंजक है। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ ए हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। नाउ ये टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब हॉरिजॉन्टल, सेकेंड में इसमें हॉरिजॉन्टल रेंज, इसमें हम निकाल लें, कैलकुलेट कर लें। हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, हॉरिजॉन्टल रेंज इज द, it is defined as the, its symbol is capital R, and it is defined as the horizontal distance covered by the projectile, this distance AB, A which is just below the point of projection O से बड़ी को हम horizontal डायरेक्शन में थ्रो किए हैं, तो उसके जस्ट बिलो है ये पॉइंट A। तो horizontal distance AB covered by the projectile, horizontal distance, this horizontal distance covered by the projectile is called horizontal range, and this point A is just below point of the point of projection O। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइट डाउन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मीन्स क्षैतिज दूरी, इसको हिंदी में क्षैतिज दूरी कहेंगे। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कि ये भी है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी कवर्ड बाय, और ये पॉइंट जो है ओ के पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के जस्ट बिलो है, कवर्ड by the projectile, by the body, or projectile is called by the projectile is called its horizontal range, its horizontal range। and its symbol is capital T, its symbol is capital T। Now, sorry, its symbol is capital R. Here it is R. Now again, repeating using the equation of the projectile, equation of the body, equation of motion of the body in a plane along x-axis। तो इक्वेशन क्या था हमारा x एक्सिस के along motion के लिए, x इक्वल टू using the equation of motion of the projectile along x-axis, motion during its motion in a plane। तो इस इक्वेशन को मैं ऑब्टेन कर चुका हूँ। तो x इक्वल टू एक्स नॉट प्लस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए vo इनिशियल स्पीड vox दैट इज u, vox प्लस हाफ ax t स्क्वायर। लेकिन जो हॉरिजॉन्टल मोशन प्रोजेक्टाइल का है वो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ है, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ है। सो देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस। सो वी हैव x इक्वल टू 0 अगेन इन दिस केस, एंड vox इंटू t, vox इक्वल टू u इंटू t, हेयर t इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट, चूँकि ए से बी पर पहुँचे हैं तो वो ओ पी बी ओ से प्रोजेक्ट करने के बाद हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कर पाथ ट्रैजेक्टरी ओ पी बी फॉलो करते हुए प्रोजेक्टाइल बी पॉइंट पर पहुंचा। तो उसमें जो टाइम थी, टाइम टेकन बाय द प्रोजेक्टाइल इज टाइम ऑफ फ्लाइट, कैपिटल टी है। इसलिए यहाँ भी रेंज में भी पार्टिकल बॉडी जो है ए से बी डिस्टेंस कवर किया है, बी पर पहुँचा है, तो उसके लिए टाइम टी लेना होगा जो कि टाइम ऑफ फ्लाइट होगा। टी की जगह कैपिटल टी यहाँ यूज करना होगा। Now for the horizontal range of the horizontal projectile, that is AB, distance horizontal distance AB, उसका सिंबल R होता है, तो कैपिटल R, इसको कैपिटल R से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इट कैन बी horizontal distance AB can be represented by distance R। So x is equal to, x is the horizontal distance covered by the projectile along x axis, and it is equal to when the body projectile reaches to point B from the point of projection O, then दिस डिस्टेंस इज कैपिटल आर। तो एक्स इक्वल टू कैपिटल आर, यहाँ एक्स की जगह कैपिटल आर यूज करना होगा। नाउ एक्स इक्वल टू कैपिटल आर, और एक्स जीरो इक्वल टू 0 है यहाँ ऑरिजिन पर, और इनिशियल पॉइंट ओ पर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, प्रक्षेपण बिंदु है, वहीं से प्रोजेक्टाइल को फेंका गया है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो उसी को ऑरिजिन मान लिया गया वो पॉइंट को ऑरिजिन। तो इसलिए एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 हो जाएगा। तो आर इक्वल टू 0 हो गया।
वहाँ आर इजकल टू एक्स इजकल टू आर हो गया। यहाँ टी टाइम में जो डिस्टेंस कवर किया, टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर टाइम जो है कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, यहाँ कैपिटल टी लेना होगा, इसलिए कि ए से वो पॉइंट से, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए, कर्व पाथ को फॉलो करते हुए बी तक पहुँचने में प्रोजेक्टाइल को कैपिटल टी टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल टाइम होगा। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी ए पॉइंट से बी तक कवर करने में उसको टाइम के, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट के इक्वल ही टाइम वहाँ लेना होगा। तो एक्स इजकल टू रेंज हो गया, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए से बी तक जब प्रोजेक्टाइल पहुँचा तब, और एक्स जीरो इजकल टू 0 प्लस वी ओ एक्स इजकल टू एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यू यू मल्टीप्लाइड बाई टी इज कैपिटल टी, हेयर एक्स इजकल टू 0। चूँकि हॉरिजॉन्टल मोशन जो प्रोजेक्टाइल का है तो वह जो है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ हो रहा है, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो एक्स इजकल टू 0 एक्स एक्सिस के लॉन्ग, लेकिन ए वाई इजकल टू जी होगा। देयरफॉर आर इक्वल्स टू यू इंटू टी कैपिटल टी, यू इंटू टी, और टी के लिए हमने ऑब्टेन किया था, टी के लिए था एच इजकल टू हाफ जी टी स्क्वायर, दैट इज टी स्क्वायर इजकल टू 2h अपॉन जी, देयरफॉर टी इजकल टू रूट अंडर 2h अपॉन जी, जो कि स्पीड पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट जो है रूट अंडर 2h बाई जी, तो यू मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2h अपॉन जी, 2h अपॉन जी, यही फार्मूला हो गया रोमन में, इसको नंबर 2। दिस इज द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। दिस इज द फार्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी कवर्ड बाई द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल, यू मल्टीप्लाइड बाई रूट अंडर 2h बाई जी, और ये डिपेंड कर रहा है, ये जो है स्पीड पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन टाइम ऑफ फ्लाइट जो है, टाइम ऑफ फ्लाइट टी रूट अंडर 2h अपॉन जी, ये स्पीड पर डिपेंड नहीं करता था। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। यह क्षैतिज प्रक्षेप गति में क्षैतिज परास का सूत्र है, व्यंजक है। नाउ वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट P, at point P after time t the projectile reaches to point P of the trajectory after from point O, when from where it is thrown horizontally। वो पॉइंट से h हाइट पर, जमीन से ग्राउंड से h हाइट पर, जमीन से h हाइट पर जो पॉइंट O है, वहाँ से क्षैतिज दिशा में फेंके जाने के बाद, वो x दिशा में u स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से फेंके, यूनिफॉर्म स्पीड से फेंके जाने के बाद प्रोजेक्टाइल t समय के बाद पॉइंट P पर चलाता है। तो यहाँ पर कितना स्पीड होगा वो कैलकुलेट करना है। तो यहाँ स्पीड हमने v माना है, लेट v बी द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट पॉइंट P ऑफ द ट्रेजेक्ट्री विच मेक्स एंगल थीटा टू द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जो कि एक्स एक्सिस के डायरेक्शन से कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा, और इसका इधर एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट, चूँकि एक्स वाई प्लेन में मोशन है, और v जो है एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर है, इसलिए दो कंपोनेंट हो जाएगा, टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हो जाएगा वेलोसिटी का p पॉइंट पर, vx तथा vx एंड vy। और tan थीटा अगर निकालना होगा, कितना डायरेक्शन होगा vx के एक्स एक्सिस से इसका वेलोसिटी के डायरेक्शन का, तो tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। ये vy है, ये vx है, एक रेक्टेंगल फॉर्म कर लिए, तो रेक्टेंगल में सामने का जो साइड होता है, अपोजिट साइड, वो सेम लेंथ का होता है, तो इक्वल हो जाएगा। ये vy है तो ये भी vy हो जाएगा, देयरफॉर tan थीटा इक्वल टू vy अपॉन vx। लेकिन पहले हम p पर जो वेलोसिटी है v, उसका मैग्नीट्यूड हम निकालें। p बिंदु पॉइंट पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल के कर्व पाथ p पॉइंट पर जो वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल का v है, तो उसका कंपोनेंट हम पहले निकाल लें, उसका वैल्यू निकाल लें, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, तब उसका इंक्लिनेशन कितना होगा एक्स एक्सिस से tan थीटा, वो फार्मूला से tan थीटा इक्वल टू vx से वेलोसिटी का डायरेक्शन मालूम हो जाएगा, ऑब्टेन हो जाएगा एक्स एक्सिस से। तो लेट पहले उसका वेलोसिटी v है, तो लेट now we have to calculate the magnitude of velocity at point P, and velocity of the projectile or body at point P of the trajectory of the body projectile, horizontal projectile है, projectile at point P of the trajectory, at point P of the trajectory means curve path। प्रोजेक्टाइल के वक्र पथ को, कर्व पाथ को ट्रेजेक्ट्री कहा जाता है, प्रक्षेप्य पथ, पॉइंट P ऑफ द ट्रेजेक्ट्री। तो वहाँ पर स्पीड हमने v माना है, लेट v बी द वेलोसिटी एट पॉइंट P
let v be the velocity of the projectile at point P, of the projectile at point P of the trajectory, point P of the trajectory. नाउ अब Vx और Vy दोनों कंपोनेंट हम मालूम करेंगे। तो Vx कैसे मालूम होगा? x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P, Vx इजकल टू इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, ये इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन along the x एक्सिस, दैट इज इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन, v इजकल टू u प्लस at, एक्सेलेरेटेड मोशन का केस। लेकिन एक्सेलेरेशन जो है x डायरेक्शन में क्या होगा? वेलोसिटी यूनिफॉर्म है इसलिए एक्सेलेरेशन 0 होगा। लेकिन इक्वेशन ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन x एक्सिस, x motion along of the projectile along x axis is the motion of is similar to the motion of equation of rectilinear motion. So Vx is equal to ux, that is ux, Vox is ux plus x into t, x into t, and ux is equal to u plus x, x डायरेक्शन में कांस्टेंट वेलोसिटी है यूनिफॉर्म, एक्सेलरेशन 0 इंटू टी, दैट इज u, x इज इक्वल टू 0 है यहाँ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोशन के लिए। प्रोजेक्टाइल मोशन का हॉरिजॉन्टल मोशन यूनिफॉर्म स्पीड से होता है, एक्सेलरेशन 0 है। Vx इक्वल टू हो गया केवल u के, x कंपोनेंट मालूम हो गया। ना y कंपोनेंट के लिए वर्टिकल डाउनवर्ड मोशन अंदर y, जो y कंपोनेंट जो प्रोजेक्टाइल का मोशन का है वह ग्रेविटी पर डिपेंड करता है। तो फॉर Vy इक्वल टू, अगेन यूजिंग द इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, v इक्वल टू Vy इक्वल टू u माइनस uy माइनस uy इज Voy माइनस gt। नाउ Vy इक्वल टू, ये वेलोसिटी का ट्रेजेक्ट्री कर पाथ जो प्रोजेक्टाइल का है OPB, उसके P पॉइंट पर जो वेलोसिटी है Vy, वेलोसिटी का कंपोनेंट है y कंपोनेंट, उसके लिए कितना होगा t टाइम में, उसका t टाइम में कितना वेलोसिटी होगा वो निकालना है। तो Vy इक्वल टू uy, दैट इज Voy, इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट 0 है क्योंकि x एक्सिस के लॉन्ग प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया गया है, प्लस g इंटू टी, ये हो गया कि सिंपली Voy 0 है, y कंपोनेंट केवल gt, Vy इक्वल टू gt हो गया, Vy इक्वल टू g इंटू टी। तो Vx इक्वल टू u, Vy इक्वल टू g इंटू टी। देयरफॉर नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P, v इक्वल टू, दोनों कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो देयरफॉर v मॉड वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी एट पॉइंट P इज रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और फिर tan थीटा हम निकाल लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे Vy अपॉन Vx। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी of the projectile at point P of the trajectory curve path is v mod is equal to root under Vx square, x component का स्क्वायर अपॉन y कंपोनेंट, स्क्वायर ऑफ y कंपोनेंट Vy स्क्वायर, Vx रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। अब t टाइम पर जो वेलोसिटी है पार्टिकल का कर्व पाथ प्रोजेक्टाइल का, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल का के जिस कर्व पाथ पर पॉइंट P पहुंचा है t टाइम के बाद, वो पॉइंट से थ्रो किए जाने के बाद, फेंके जाने के बाद, यहाँ पर वेलोसिटी का जो मान होगा मैग्नीट्यूड, वह रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर। Vx और Vy दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया है, Vx इक्वल टू u, Vy इक्वल टू gt। नाउ देयरफॉर मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, magnitude of the velocity of the projectile at point P, of the trajectory means curve path, वक्रपथ के P बिंदु पर वेग का मापांक जो होगा मैग्नीट्यूड v मॉड इक्वल्स टू रूट अंडर Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, एंड Vx इज ओनली u जो कांस्टेंट वेलोसिटी है, दैट इज u स्क्वायर, एंड Vy इज gt, g स्क्वायर t स्क्वायर,
एंड दिस इज, और इस फार्मूला से आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल के किसी भी पॉइंट पर, कर्व पार्ट के बीच में कहीं कोई पॉइंट है ट्रैजेक्टरी का, या ग्राउंड से स्ट्राइक किया तब कितना वेलोसिटी होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उस पर प्रॉब्लम भी था कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में, उसको मैंने सॉल्व किया था, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर का, इसी फार्मूला पर है। मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी व्हेन द प्रोजेक्टाइल बॉल स्ट्राइक्स द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड, तो वहाँ पर भी इस फार्मूले का यूज करके मैंने सॉल्व किया था। भी मॉड इक्वल टू रूट अंडर यू स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर टी स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वेशन 3 रोमन इन रोमन। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। अब देखिए वेलोसिटी का डायरेक्शन पी पॉइंट पर, ट्रेजेक्ट्री के कर्व पाथ के पी पॉइंट पर वेलोसिटी का डायरेक्शन एक्स एक्सिस से कितना एंगल फॉर्म करता है, थीटा। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, दैट इज वी वाई अपॉन वी एक्स। नाउ डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी of the projectile at point P, velocity of the projectile at point P of the trajectory, at point P of the trajectory is tan theta is equal to Vy upon Vx, tan theta perpendicular, that is Vy, y component upon x component, Vy upon Vx, and Vy is given gt, Vy is gt and Vx is u. So tan theta is equal to Vy upon Vx gt upon u. This is equation 4, which is the final equation of the which is the final equation of the horizontal projectile, which represents the, which determines the direction, which we can determine the direction of velocity of the projectile at point P of the trajectory, that is gt upon u. और इसी के साथ ये पार्ट समाप्त होता है, जिसमें प्रोजेक्टाइल मोशन और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन का ट्रेजेक्ट्री, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम टाइम ऑफ लाइट और वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल एट एनी पॉइंट्स ऑफ इट्स ट्रेजेक्ट्री, तो इसको हमने डिस्कस किया। अगला जो 15 पार्ट होगा वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन पर होगा, लेकिन वो कम्प्लीटली ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच।